دیر سے کھلا شاید اس لیے وہ ٹربل دے گا. آئندہ پھر میں اس بات کا خیال رکھوں گا. چلو اوکے جی. ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ. آفتاب مغل کی جانب سے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید. ہم نے ان تمام ساتھیوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں فیس بک پر جوائن کیا ہے یا وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. آج کی نشست کا اہتمام مائنورٹی کنسرن پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. مائنورٹی کنسرن ایک ڈیجیٹل میگزین ہے جو اقلیتی حقوق اور پاکستان میں جمہوری قدروں کے لیے کام کرتا ہے. آج جب پاکستان بھر میں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی بحث ایک بار پھر نئے سرے سے شروع ہو چکی ہے تو یہ لازم ہے کہ پاکستان کے تمام کمزور طبقات بھی اس میں حصہ ڈالیں. ہماری آج کی بحث کا موضوع ہے پاکستان پولیٹیکل سسٹم اینڈ مائنورٹیز. ہم انتہائی ممنون ہیں کہ آج ہمیں جن احباب نے جوائن کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان میں ہونے والے سیاسی عمل کا حصہ رہے ہیں. کچھ عملی طور پہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور کچھ سیاسی بیداری کے کام میں مصروف ہیں. میں ان سب کی یہاں پہ موجودگی کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں جناب ایم پرکاش صاحب کا جن کی پوری زندگی انسانی حقوق کی ترویج کے لیے گزری ہے. خاص طور پہ میں عرفان مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ بنیادی جگہ پہ انسانوں کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے اور پاکستان بھر میں انہوں نے انسانی ترقی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تیار کیا ہے. آج کی نشست کے ماڈریٹر کے فرائض جناب جان باسکو صاحب سر انجام دے رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پر یہ ذمہ داری قبول کی. آپ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں ان کا وسیع تجربہ ہے. میں ناظرین کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ مسیحوں میں یقیناً پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ ٹی وی پر صحافت کا آغاز کیا. آپ دنیا بھر میں اور خصوصاً یو کے اور پاکستان میں موجود پاکستانی مسیحیوں کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. آپ کی شخصیت ہمہ جہتی ہے. آپ اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ صحافتی، مذہبی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ پیش رہتے ہیں. پاکستانی مسیحیوں کی پائیدار ترقی ان کا خواب ہے. He is a man of ideas and actions both. آپ عرصہ دراز سے گیٹ وے گیزٹ کے نام سے ایک ٹی وی شو ہوسٹ کر رہے ہیں جو ہر ہفتے ایم اے ٹی وی سے اسکائی کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے. آپ بہت سی تنظیموں کے ساتھ بھی منسلک ہیں. کسی تنظیم میں ان کا ہونا اس تنظیم کے لیے فخر اور عزت کا باعث ہے. آپ اپنی ذاتی حیثیت میں اور مختلف تنظیموں کے پلیٹ فارم سے انسانی ترقی کے عمل میں مصروف ہیں. آپ کو لفظوں کے چناؤ اور ان کے استعمال پر عبور حاصل ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا انداز گفتگو بھی اپنی مثال آپ ہے. آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے لیکن اب وہ عرصہ دراز سے لندن میں مقیم ہیں.
मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू भाई मुगल। और मुझे नाजरीन के सामने ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मिनॉरिटी कंसर्न ने जितने भी प्रोग्राम किए हैं अब तक वो बड़े कामयाब हुए हैं, और ऐसे ऐसे मौजू पे बात होती है जिसपे शायद जो हमारा मेन मीडिया है, पाकिस्तानी जो मीडिया है, वो बड़ा एक कंट्रोल मीडिया है। और लेकिन हमें ये जान के बड़ी खुशी होती है कि मिनॉरिटी कंसर्न और ख़ास तौर पे आफ्ताब मुगल साहब वो मौज़ूआत को लेते हैं जिस पे पाकिस्तान में बात करना बड़ा मुश्किल होता है। और मुझे आज ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ जो पैनल है उनका एक बड़ा वसीह तजर्बा है, वो इस इश्यूज पे बड़े अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और आज का जो हमारा खास तौर पे जो मौजू है, मैं समझता हूँ कि उस पर एक नहीं बल्कि अगर हम उस पर 100 प्रोग्राम भी करें तो शायद हो सकता है कि कम हो। पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम एंड मिनॉरिटीज। अच्छा, ये अपने आप में खुद भी आपको एक बड़ा अजीब लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में मिनॉरिटी जो है वो किस जगह पे उनको रखा गया है? आया वो उस इलेक्टोरल सिस्टम का जो है वो हिस्सा है, या उनका जो चुनाव जो है वो किस तरह के वोटिंग से होता है? तो हम ये जानेंगे अपने साथियों से। हमारी जो पहली मेहमान है जिनसे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा, आयगा कैनी, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक पे और देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को इस दफा देखा जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उनका मैं थोड़ा तारुफ भी करवाऊं। शी इज एक्टिव मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। क्लास में जो है शी इज अ प्रोग्राम ऑफिसर, और 2016 से वो इस खिदमत में है साथ ही। आयगा, मैं खुशामदीद कहता हूँ आज के अपने इस प्रोग्राम में। प्लीज अपने जो म्यूट किया हुआ आपने, प्लीज माइक को खोल दीजिए। यस, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच। और आप 2016 से जो है जी 2016 से आप जो है क्लास के साथ जुड़ी हैं, और मैं जोसेफ फ्रांसिस साहब से मेरी बड़ी मुलाकात रही है। हाँ जब वो यूके में आए हैं 2-3, मैंने उनके साथ खुद भी उनके इंटरव्यू किए, और मुझे पता है कि जो पैशन उनके पास है, जो जज्बा उनके पास है, वही जज्बा उन्होंने अपनी टीम को भी किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और मिनॉरिटीज, तो एज अ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हुए आप इसे कैसे देखती हैं? हाँ जी, मेरा ताल्लुक एक्चुअली जो आपने तारुफ करवाया वो बिल्कुल ठीक है। ऑफिशियली जो क्लास को मैंने ज्वाइन किया था that was back in 1996, but then I left after I got married in 2002, and then I came back to Pakistan, और अब मैं दोबारा से क्लास के साथ एक्टिव हूँ। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, it has never changed in my opinion. It's not inclusive, but it's very exclusive. उसमें ये है कि जिसके पास हमारे यहाँ पर ये रवायत है कि जिसको उर्दू पढ़नी या लिखनी आती है वो जर्नलिस्ट नहीं बन जाता, लेकिन हमारे यहाँ पे रवायत ये है कि जिसका कोई फेमस सरनेम है और जिसके पास थोड़ी बहुत पैसा है वो सियासत कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के पास विजन है या पैशन है एंड दे वांट टू सर्व देयर कम्युनिटी, अगर उनके पास सरनेम नहीं है और उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने विजन के साथ मर भी जाते हैं और उनका कोई मोल भी नहीं होता। तो पॉलिटिकल सिस्टम में आजकल जो है वो यही है कि you need to know people और you need to be famous, otherwise you can't get into that political system. और हम सिर्फ माइनॉरिटीज की बात जब करते हैं then it doesn't mean कि it's only religious minorities जो कि marginalized हैं इस political system में, but there are other minorities as well, like gender minorities, like जो कि अभी तक recognition ही नहीं उनको मिलता, कोई प्लेटफॉर्म उनके पास है ही नहीं। In fact जो religious minorities हैं they have been very vocal. उनमें से जो Christian community मैं सोचती हूँ कि they have been the most vocal religious minorities in Pakistan. तो मेरा जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन जो था वो भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में ये बताइए कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो पाकिस्तानी मिनॉरिटीज को किस तरह से सपोर्ट करता है?
मेरा ख्याल है कि उनका जो है सिस्टम जो है वो मैं देख रहा हूँ कि शायद आएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल उनके साथ हमारी डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आई विल गो टू नदीम भट्टी साहब जो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में हैं। और नदीम भट्टी साहब ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कैनेडियन एड टू परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस, जो कि कनाडा में से अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। एंड ही आल्सो लिव इन कनाडा, और वो पाकिस्तान से ह्यूमन राइट्स के साथ वाबस्ता रहे हैं। ही वाज ए मेंबर ऑफ क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट। और मैं नाज़रीन को बता दूं कि क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट जो थी वो तंजीम थी कि ये उनके बानियों में से है, जब शहबाज भट्टी साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर थे जिन्हें 2011 में असैसिनेट किया गया, तो ही वाज आल्सो चेयरमैन, और ये उनके साथ ही सारे साथी हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। और ही इज द कैथलिक एक्टिविस्ट, और काफी देर से जो है वो कनाडा में जो है अपनी ये जो ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज और सियासी सरगर्मियां जो हैं उनकी। नवीद भट्टी साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि जी आयला, मैं आपके पास आएगा, मैं आपके पास बाद में आऊंगा सेकंड राउंड में। जी बताइए। ये सियासी पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में जो मिनोरिटीज की को देखा जाता है, पहले हमने जुदागाना इंतखाबात का एक्सपीरियंस किया कि वो कैसे रहे, और उसके बाद मखलूत इंतखाबात आ गए। तो हमने 2 इंतखाबात को अभी देख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमें ये देखना है कि हम मिनोरिटीज के लिए कौन से इंतखाबात जो ज्यादा अच्छे हैं, जिसमें अपनी उनकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, अच्छे तरीके से उनकी बात सुनी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमें जो मिनोरिटीज हैं उनमें अपने प्रॉब्लम है। एक तो लीडरशिप की कमी है, हमारे पास इतनी अच्छी लीडरशिप नहीं है जो हमारे विजन को लेके अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके और नेशनल असेंबलीज में जाके। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो मखलूत इंतखाबात का सिस्टम चल रहा है, इसमें भी हमारे पास ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती हैं हमारे मेंबर्स पार्लियामेंट को आगे लेके जाने के लिए। और डिपेंड करता है कि आगे जाके उनका क्या विजन है, वो पार्टी के विजन को लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं वो तकरीबन अच्छे हैं, इनको सिर्फ हमें थोड़ा सा रीशेप करना है और अपने लोगों को थोड़ा सा मजबूत करना है ताकि वो इसमें अच्छे तरीके से हिस्सा ले सके। इसमें जो मैं समझता हूँ बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सेंसस का, क्योंकि हमारी जो मर्दमशुमारी है उसकी वजह से उसकी कोई सही स्टैटिस्टिक्स की फिगर सामने नहीं आ रही। तो अगर मर्दमशुमारी हमारी जो पॉपुलेशन है वही कम दिखाई जाती है और उसको कोई अच्छे तरीके से नहीं उसकी फिगर सामने आती, तो उसकी वजह से हमारी जो फेडरल में सीटें हैं उनका इजाफा भी नहीं हो सकता, जो प्रोविंशियल में सीटें हैं उनका भी इजाफा नहीं हो सकता। तो मैं सोचता हूं कि हमारी जो मर्दमशुमारी है वो सही तरीके से होनी चाहिए और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज होनी चाहिए, हल्का बंदियां होनी चाहिए, उससे हमारी सीटों में इजाफा होगा। और जब जुदागाना इंतखाबात थे तो उसमें एक चीज थी कि सियासी काफी ज्यादा अवेयरनेस होती थी, लोग एक दूसरे से वोटों की बात करते थे, मिलते थे, वोट लेने हमारे लीडर जाते थे। तो हमने देखा कि जैसे 6 साल का इलेक्शन हुआ, जैसे 1998 का इलेक्शन हुआ, जॉर्ज क्लेमेंट साहब, पीटर जॉन सोतरा साहब, उन्होंने एक वोट लिया, एक सियासी गहमा-गहमी होती थी, एक लोगों को तजस्सुस होता था कि हमने इसको वोट देना है। अब हमारे जो लोग आते हैं, मैं सोचता हूँ सम टाइम वो मेंबर पार्लियामेंट आ जाते हैं जिनका कभी कोई नाम सुना ही नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है, और इसी तरीके से वो आगे आ जाते हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा अकरम गिल साहब का, माजरत के साथ के मतलब उनकी स्टोरी थी एक कि वो कैसे इस प्रोसेस में आए, MNA कैसे बने। तो इन दोनों को सिस्टम तो दोनों ही तकरीबन अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। हमें अपनी मिनोरिटीज को एक विजन देना चाहिए कि हमारा ये विजन है, हम इसके लिए काम करते हैं, और इसमें सारे जितने मिनोरिटीज हैं, हिंदूज कम्युनिटी हैं, सिख्स हैं, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनको सबको मिलके चलें तो फिर कामयाबी की तरफ हम जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच नदीम भट्टी साहब। हमारे साथ नाज़रीन, मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है ये इतना गहरा टॉपिक है
اور اس پہ اگر ہم بات آگے نکلتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس خاص طور پہ اگر ہم منورٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہماری لیڈرشپ کی کمی ہے. اور جب میں پرکاش صاحب کے پاس جاؤں گا کیونکہ ہی از اے ویری سینئر پرسن, آئی ول ٹیک ہم لٹل لیٹر. اور لیکن میں آپ کو ناظرین یہ بتاؤں کہ بہت ساری جو دوسری منورٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی بھی کمی نہیں ہے, اور ان کے اندر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر تعلیم کا فقدان بھی اتنا نہیں ہے. تو نوید والٹر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہی, از دا پریزیڈنٹ آف ہیومن رائٹس فوکس پاکستان. انہوں نے جو اپنی جرنی جو سٹارٹ کی تھی کرسچن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے, تقریباً کوئی میرے خیال 20 سال سے زیادہ ہو گیا انہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز کے ڈیل کرتے ہوئے, اور وہ بہت سارے فورمز پہ انہوں نے بات چیت کی ہے, انٹرنیشنلی سچ ایز EU اور UN کے فورم سے انہوں نے بات کی ہے, اور ان کے انٹرنیشنلی طور پہ ہی از اے ریکگنائزڈ پرسن. تو پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ میں نے دونوں لوگوں سے بات جو کی تھی ابھی آپ سے پہلے, تو دونوں سے میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے منورٹیز کے حوالے سے وہ کیسے ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو پاکستان میں جو لیڈرشپ کا فقدان ہے اسے کیسے دور کیا جا سکے گا. میں اس ٹائم جو منورٹیز کی خاص طور پہ حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں کرسچنز کو اس وقت جو ہے آپ کے سامنے رکھ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, تو کیسے اس لیڈرشپ کے خلا کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جان باسکو صاحب. میں سب سے پہلے تو آفتاب مغل صاحب ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جنہوں نے منورٹی کنسرن پاکستان کا آغاز کیا, اور ان کی خدمات جو پاکستان میں ہے عرصہ دراز سے, وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں. اور اس فورم کا جو اہتمام کیا ہے اور اس کا جو نام ہے, اس کا جو موضوع ہے, یہ واقعی ایک نشست میں کور ہونے والا نہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن پہلے میں تھوڑا سا اس موضوع کی طرف بات کروں گا کہ پولیٹیکل سسٹم کی جب ہم بات کریں اور منورٹی کی بات کریں تو یہ صرف جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بات کرنے سے کور نہیں ہو سکتا. اس پہ ہمیں جو ہمارا تاریخی پس منظر ہے, جو ہمارا سیاسی پس منظر ہے, جو ہماری سیاسی تاریخ ہے, جو ہماری آئینی اور قانونی جو آرٹیکل ہیں اس میں جو منورٹیز کی ریزرویشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو منورٹیز کے اعداد و شمار ہیں, ان 3-4 چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اکٹھا ملا, اور بھی بہت سے عوامل ہیں, لیکن منورٹیز اور پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے جو منورٹیز پہ چیزیں اور عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں, ان 4 چیزوں کو اگر دیکھیں تو 1947 سے لے کے اب تک منورٹیز پر مختلف طرح کے تجربات کیے گئے, بلکہ پاکستان جو ہے اس میں بھی جو آدھا عرصہ ہے وہ مارشل لا کی نظر ہو گیا. آپ دیکھیں 1947 میں جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تو وہ مشہور زمانہ 11 اگست کی سپیچ تھی, اسٹیٹس کی ایک مثال تھی. لیکن اس کے ساتھ 11 اگست کی دوسرے دن 12 اگست کو ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جو قائد اعظم نے بنائی. وہ کمیٹی تھی فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز پہ اور ایکویلٹی آف منورٹیز اور ان کی پروٹیکشن پہ وہ کمیٹی بنائی گئی. اور اس جو پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں 25% جو منورٹیز کے نمائندے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد قائد اعظم کی رحلت کے بعد انفارچونیٹلی 1951 سے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ آمریت کی ہوا چلنا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد 1958 سے قاعدہ اس کا آغاز ہو گیا, پھر 1977 آ گیا, پھر 1988 آ گیا. اس طرح آہستہ آہستہ 1999 تک جو ہے نا یہ مارشل لا کی نظر ہو گیا. اب اس میں 1985 میں جو محمد ضیاء الحق کے دور میں جو اسلامی جو نقطہ نظر تھا ان کا, اس کو کس طرح انہوں نے امپوز کیا ہر شعبہ زندگی میں اور پارلیمنٹ میں, اور اس میں جو اقلیتوں کی نمائندگی تھی وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ذریعے ان کو شامل کیا گیا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے بلاسفیمی ایشو لاز بھی آئے, ان میں امینڈمنٹس بھی آئیں.
फिर उसके बाद फिर एक और तजर्बा हो गया, जो सेपरेट जो जॉइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम था, जो 2002 में मुशर्रफ ने जिसकी बुनियाद रखी। ये सारे तजर्बात के बाद, हाँ अलबत्ता इसमें जो पीपल्स पार्टी है, इसमें इसने जो सेनेट में अक़लियतों की नुमाइंदगी दी है, वो एक बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि जमहूरियत की भी एक बहुत ही जो एक लेबॉर्ट्री के तौर पे काम करता रहा, इसमें जमहूरियत जो है इसमें ये भी अच्छी तरह नहीं पनपी। और जमहूरियत में आपको पता है इंसानी हुकूक और इंसाफ और अक़लियतों की सूरत हाल और ख़वातीन की सूरत हाल और तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं, उनको जब तक इक्वल स्टेटस नहीं मिलता, किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो इस तरह के सिनेरियो में जो अक़लियतें हैं इन्होंने सफ़र किया है, और अक़लियतें हमेशा जो है वो पसे दीवार ही रहे हैं, इनको दीवार के साथ लगा दिया गया है हमेशा। और आज भी गो के जो रिजर्व सीट्स पे लोग जाते हैं, मैं उनकी बड़ी बहादुरी समझता हूँ। पॉलिटिकल होते हैं, बात भी करते हैं, वो बिल आते हैं, और उसके बावजूद वो आवाज भी उठाते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा हूँ आईनी हवालों से, तो आईनी हवालों से आप देख लें, आप मेरा जाती राय है कि आर्टिकल 2 जो है, जिसकी जो की तशरीह करता है, ये इसकी भी रिजर्वेशंस है मिनॉरिटीज को। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाया गया शुरू से। जो पहली अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुई है वो इसकी नजरियाती सदों के हवाले हुई। जो दूसरी अमेंडमेंट हुई है 1974 में, वो मजहब की बुनियाद पे हुई है। आपने एक तबके को अक़लियत बना दिया है, और ये ट्रेंड है, ये दरअसल एक मिनॉरिटी की बात नहीं, ये ट्रेंड सेट किया गया है कि हम इसको किस तरफ लेके जाना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मिनॉरिटीज हैं उनका रोल कठपुतली की तरह ही रह गया, उनके नुमाइंदों का, और जो अवाम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले तारीफ की है कि जो मिनॉरिटीज के नुमाइंदे, उनकी बड़ी बात है कि वो सेनेट में नुमाइंदगी भी ले आए। उन्होंने आर्टिकल 41 और 91 जो प्राइम मिनिस्टर को सदर यानी सदर और वजीर आजम बनने की जो कदगने लगाई गई हैं, उसके हवाले से भी बिल लेके आए। वुमेन मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल लेके भी आए, चाइल्ड मैरिज बिल लेके भी आए, और भी बेशुमार बिल्स हैं जो असेंबली तक लेके जाते हैं। मसला ये है नवीद साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। फिर बास्को साहब, मसला पता क्या है? मसला ये है कि जब असेंबली में बिल आता है तो उसको अपोज करने वाले बड़े होते हैं। फिर उसके बाद जब सेनेट में जाता है, सेनेट में आपको पता है 17 जो नशिस्तें हैं वो टेक्नोक्रेट्स / उलमा की हैं। तो 4 नशिस्तें उधर क्या कर रहेंगी, जो 4 सेनेट में अक़लियतों की नशिस्तें हैं। फिर उसके साथ जो फेडरल की नशिस्त है उसमें भी मैं तो कहता हूँ अक़लियत की एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, फाटा से भी होनी चाहिए, उधर भी कोई अक़लियत के होंगे। ये एक बहुत बड़ा कैनवस है। मैं नबी साहब आपके पास दोबारा आऊंगा और फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। और मैं आप ही के पॉइंट को आगे लेके चलते हुए, मैं नाज़रीन, मेरे साथ जनाब इरफान मुफ्ती साहब हैं। ही इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अ 6 country डेवलपमेंट एंड एडुकेशनरी कंसोर्शियम है, साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान, एंड करंटली he is serving as its deputy executive director. He also worked as global campaign manager for Global Call to Action Against Poverty from Johannesburg, South Africa for 3 years. He has worked extensively in community development, field facilitated community groups and network, organizational planning, community development, project humanitarian assistance and advocacy campaign. और इरफान साहब, वी वेलकम यू टू द शो। इरफान साहब अनम्यूट कर लें आप। जी मैंने कर लिया, थैंक यू, बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम के लिए। और जितनी हम आपकी देख रहे हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया तक है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान को बने 73 साल हो गए हैं, और जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो जो उस वक्त के जो जरायद हैं वो हमें ये बताते हैं
کہ پاکستان میں جو منورٹیز کی جو تعداد جو تھی وہ 23% تھی. اچھا وہ 23% جو ہے اب وہ کم ہو کے اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک تو جس کا ابھی نوید صاحب نے اس کا بڑا ذکر کیا تھا اور بھائی ندیم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو تعداد جو ہے وہ کم ہو کے ایک تو ہمیں سینسس صحیح طرح بتائے نہیں جاتے. تو آپ جو ہے منورٹیز کو آئین کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ جان صاحب. دوستو کچھ بات تو نوید نے کی ہے کہ 73 سال کا سفر ہے، بلکہ میں تو اس کو 125 سال دیکھتا ہوں جب برٹشرز نے ایک کمیونٹیرین پالیٹکس انٹروڈیوس کروائی سب کانٹیننٹ میں، اور اس کے بعد پھر ایک ریلیجیس ڈیوائڈ بنا ہندو مسلم، اور ایونچولی 47 تک تو ہم نے ٹو نیشن تھیوری بھی رکھی، اور ہم نے ضرور یہ سوچا کہ ہم اسٹیٹ فار مسلم بنائیں گے، لیکن وہ صرف اسٹیٹ فار مسلم نہیں رہی، وہ مسلم اسٹیٹ بن گئی. یعنی ایک ریاست، اور اس کا اظہار مسلم لیگ کے بہت سارے جلسوں میں قائد اعظم اور دیگر جو فقہ تھے وہ کرتے تھے کہ ہم کوئی مذہب کی ریاست نہیں بنا رہے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک اسٹیٹ بنا رہے ہیں. بٹ اینی وے، اور اس کا جو بنیادی تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمان ہندو میجورٹی ملک میں رہیں گے تو یہ انسیکیور ہو جائیں گے، تو ہمیں فیئر آف میجورٹی بہت تھا. لیکن جب ہم نے ملک الگ ریاست بنائی تو ہم نے اپنی بھی منارٹیز کے ساتھ وہی کیا جس کا خدشہ ہمیں ایک میجورٹی کے ساتھ اس وقت تھا کہ اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتا تو ہم ایک ہندو میجورٹی کے اندر کیسے زندہ رہتے. تو خیر یہ تو ایک پوری ہے. اور پھر آبجیکٹیو ریزولوشن کس طرح سے لایا گیا، اور ایونچولی 71 تک تو پھر بھی ایک لبرل ہم ریاست کے طور پر چلتے رہے. لیکن پھر اس کے بعد 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ چیزیں ڈلیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم سوویت وار میں گئے تو پھر تو ہم نے ریاست کو بھی اسلامائز کیا. تو پہلے جب اینٹی احمدیہ رائٹس ہوئے 53 کے، اور پھر بعد میں چیزیں چلتی رہیں، لیکن 73 تک ہم نے جب آبجیکٹیو ریزولوشن کو پریمبل میں ڈالا، اور پھر 85-86 میں ہم نے اس کو باقاعدہ اس کا سبسٹنٹیو پارٹ بنا دیا، تو ہم نے پورے آئین کا ہی ڈھانچہ بدل دیا اور اس کو اسلامائز کیا اور اس کو فیتھ بیس کیا. تو میرا خیال ہے کہ 1985 میں ایک نیا آئین لکھا گیا تھا. یہ وہ اوریجنل آئین نہیں تھا جو 1973 کا تھا، وہ پھر بھی ایک بہتر آئین تھا. لیکن 85-86 میں جو ہم نے انسرشنز کی، اور بڑی بنیادی انسرشنز کی ہیں، ابھی یہ نوید بتا رہے تھے 2A کا جو ایڈیشن کیا تھا اس میں بھی ہم نے اومیشن کی، اس میں بھی ہم نے لفظ فریلی نکال دیا. یعنی ریلیجیس فریڈم کو ہم نے اس میں رکھنے کی کوشش تو کی، لیکن جو ایک بنیادی آبجیکٹیو ریزولوشن کا ورڈ تھا وہ بھی ہم نے نکال دیا. سو ہم نے آئین کا چہرہ مسخ کیا، اور پھر ہم نے پوری اس ریاست کو اسلامائز کیا. تو یہ جو ٹاپ ڈاؤن اسلامائزیشن ہوئی ہے، یہ چیپٹر بہت تاریخ ہے. اور پھر آپ اس پر بات نہیں رکی ہے، جو بلاسفیمی لاز آئے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 295A-B تک تو ہم نے صرف سزائیں رکھی تھی. یعنی کوئی 5 سال تھی، کوئی 3 سال تھی، کوئی لائف. لیکن جب 295C ڈالا تو اس میں تو ہم نے کمپلسری ڈیتھ ڈال دی. تو پورا آئین کو ہم نے ایک نئے نیریٹو کے ساتھ ڈیولپ کر کے ریاست کو ایک ریلیجن کی آئیڈینٹی دی، نام دیا. اور پھر ظاہر کریکولم بنا، اس کے بعد نئے ادارے کھڑے ہوئے، شریعہ کورٹس بن گئیں. اور ہم نے یعنی اس سوسائٹی میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی، تھوڑی سی جو سوسائٹی لبرل ایتھوس پہ چلتی تھی، کچھ سیکولر تھی، وہ آہستہ آہستہ 85 کے بعد سے تو میرا خیال ہے کہ ڈاؤن ورڈ کیوس میں ہی ہم گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جان صاحب کے آج کے دور میں جتنے بھی بلاسفیمر اس کے پر کھڑے ہوتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، چاہے ممتاز قادری ہے، یہ سارے 1980 کے ہی بچے ہیں، اس دور میں پیدا ہوئے تھے. اور آج آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی نسل بن چکی ہے جو ایک بہت خطرناک نسل ہے، اور وہ بہت رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ویو رکھتی ہے دوسروں کے بارے میں، اور وہ سوائے اپنے فیتھ کے کسی اور فیتھ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. سو آپ اس سے دیکھیے کہ ہم ایک ایسی جنریشن فیس کر رہے ہیں جو کہ اب جس کا ریورسل بہت مشکل ہوگا. سو ریاست کو ہم نے پورا یعنی ڈاؤن ورڈز ٹو ڈاؤن ورڈ ہم نے اسلامائز کر کے رکھ دیا. لیکن ایک خطرناک بات یہ ہوئی ہے جان صاحب کہ اچھا پھر اس میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ آئین کا جو 260 آرٹیکل ہے اس میں ہم نے باقاعدہ مسلمانوں کی ڈیفینیشن بھی کر دی. یعنی ایک طرف ہم نے نان مسلم ڈیفائن کی، اور پھر ہم نے مسلمان ہونے کی بھی ڈیفینیشن کی. 1 اور
2 जो है 260 का, जिसका ये मतलब है कि नॉन मुस्लिम तो हमने डिफाइन कर दिए, अब मुसलमानों की भी हमने कहा कि ये मुसलमान होगा और जो नहीं होगा तो वो भी नॉन मुस्लिम होगा। तो आप देख लीजिएगा ये शियाओं के खिलाफ बाकियों के खिलाफ भी ये जजमेंट्स अब आएंगी। तो इसका ये मतलब है कि आइन को सिर्फ इस्लामाइज नहीं किया गया, बल्कि खास वर्जन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम उसके साथ जोड़ा गया है। तो अब खतरनाक सूरत हाल क्या है, मैं फिर थोड़ी सी पॉजिटिव बात करूंगा। खतरनाक ये है कि रियासत फिर भी नया नैरेटिव बनाना चाहती है। बहुत सारे हलकों से हमसे राब्ता होता है कि जी आए हमारी मदद करें, एक नया नैरेटिव बनाते हैं। तो रियासत किसी हद तक अब उससे निकलना भी चाहती है। इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, बहुत सारी जगहों पर जवाब देने पड़ते हैं, फिर ब्लास्फेमी केसेस, जब मॉब अटैक्स होते हैं तो फिर इनके मसाइल होते हैं। लेकिन अब सोसाइटी में जो फॉल्ट लाइन्स है वो इतनी गहरी हैं कि अब आप उसको नहीं भर सकते। मतलब अब तो अदालतों में बात जाती नहीं है और मॉब्स अपने फैसले कर लेते हैं। अब तो कहीं किसी अदालत में शायद ही कोई जाता होगा, अब तो हम खुद ही मार देते हैं। अब शमा का केस देख लीजिए, मतलब बहुत सारे केसेस मैं आपको बता सकता हूं। अहमदियों के बारे में तो हर रोज हम उनको मारते हैं, जला देते हैं। तो अब तो सोसाइटी डीप डाउन जो है ना वो उसकी फॉल्ट लाइन्स हैं, इसको कैसे कवर करना है। अब मैं लास्ट बात पर जो इस टॉपिक का जो आज का टॉपिक है वो इस पर बात करूं कि अब रियासत का जो ढांचा है उसमें दोनों रुझान है। एक तरफ वो रिलीजियस नैरेटिव को भी चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल पुश की वजह से कुछ थोड़ा बहुत लिबरल मॉडरेट इस्लाम भी दिखाना चाहते हैं। अच्छा, उसमें वो जरूर ये करते हैं कि कुछ नए कवानीन, जैसे भी डुअल इलेक्शन राइट्स दिए इन्होंने माइनॉरिटीज को, जी आप अपना भी कैंडिडेट लाएं और आप ओपन सीट पर भी लड़ें। तो बहुत सारी स्पेसेस बनी हैं, कुछ और चीजें भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अडॉप्ट की चीजें। इसके साथ साथ मीडिया में भी सपोर्ट आ रही है, मीडिया काफी सपोर्ट करता है, सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, काफी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि चैलेंज इज मच बिगर देन व्हाट वी एंटिसिपेट। एंड चैलेंजेस इतना बड़ा एक वो है एक्सट्रीमिस्ट जो एक फोर्स है सोसाइटी के अंदर है, इदारों में है, जजों से लेकर पुलिस के अंदर है, लॉ एनफोर्समेंट, तो उसको कैसे डील किया जाएगा, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। बट आई स्टिल बिलीव कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से कुछ बात आगे चलाई जा सकती है। थैंक यू इरफान साहब, आई विल कम बैक टू यू। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम एमपी एंथनी नवीद साहब हैं। एंथनी नवीद साहब, आप जरा प्लीज अपने माइक को जो है अनम्यूट कर लीजिए। एंथनी नवीद साहब जो है एमपी हैं सिंध से, पीपल्स पार्टी से, लेकिन उनकी जो जद्दोजहद है, सियासी जद्दोजहद, पिछले कोई 30 साल से ज्यादा उनकी सियासी जद्दोजहद है। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ से एंथनी नवीद साहब जो है इंसानी हुकूक के लिए, चाहे वो मसीहों के हुकूक हों या मिनॉरिटी से रिलेटेड हो या मेजॉरिटी से, तो ह्यूमन राइट्स में ही वाज अ वेरी वेरी एक्टिव एंड ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। एंथनी नवीद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज अपने इस प्रोग्राम पे। बहुत शुक्रिया जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आप हमारे वाइद एमपी हैं जो कि सिंध हुकूमत से। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम एंड मिनॉरिटीज। क्योंकि आपकी जद्दोजहद को मेरा ताल्लुक कराची से और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल आप जिस तरह से आपने अपने आप को ग्रो किया है, एक तो ये मुझे बताइए, हमारी बड़ी बहस होती है, बहुत दफा बहस करते हैं कि आया हमें वोटिंग का जो सिस्टम है वो चेंज करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रल सिस्टम जो है सिलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। एक तो मैं चाहता हूँ कि इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें, और दूसरा ये कि आप बताएं कि मिनॉरिटीज को किस जगह पे देखते हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में। बहुत शुक्रिया जॉन बॉस्को साहब। सबसे पहले तो मैं जितने भी आज इस गुफ्तगू में शरीक हैं, मेरे मोअज़्ज़ज़ जो पैनलिस्ट हैं, सबकी खिदमत में आदाब अर्ज करना चाहूँगा, और जितने व्यूअर्स हैं आपके, उनकी भी खिदमत में आदाब अर्ज करना चाहूँगा। वो कि मेरे बड़े सीनियर यहाँ पर दोस्त तशरीफ फरमाए और उनके सामने बैठकर गुफ्तगू करना, मुफ्ती साहब हैं, प्रकाश साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। लेकिन चलें, आपने आज मौका दिया तो बात करते हैं। देखिए, ये बड़ी ही कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं
और कुछ ऐसी कैमोफ्लैज हैं सारी सिचुएशन कि बीइंग ए रिलीजियस माइनॉरिटी कभी कभी मतलब हम खुद भी इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि हम इस सिस्टम में किस तरीके से पार्टिसिपेट करें और किस तरीके से हम अपने सियासी ये जो हकूक की जंग है उसको लड़ सकें। और मैं तो समझता हूँ कि 1947 से लेकर आज तक 2002 तक ये जो मुख्तलिफ तजर्बात की हम इसमें से गुजरे हैं और जो भी हुकूमतें आई हैं, इन्होंने रिलीजियस मिनॉरिटीज को एक बड़ी ही अपना आसान एक तजर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल किया है और अपनी ज़रूरत के तहत जो उस वक्त ज़रूरतें होती नहीं हैं, चाहे वो सिविल हुकूमत हो, चाहे वो आमिर हो, उसने अपनी ज़रूरत के तहत जो है वो इंतखाबी निज़ाम जो है वो अक़लियतों के लिए वज़ा किया है और उनको दिया है। गो के उसमें हमारी कुछ सियासी जदोजहद भी नहीं है माइनॉरिटी जो एक्टिविस्ट है उनकी, क्योंकि जब अगर मैं ये कहूँ कि जुदागाना इंतखाबात को अगर कुछ लोगों ने डिमांड किया था, तो कुछ अरसे के बाद जुदागाना इंतखाबात के खात्मे के लिए भी हम जैसे और आफ्ताब भाई जैसे, इरफान साहब जैसे मतलब दोस्तों की रहनुमाई में हमने वो जदोजहद भी की थी और ये सीखा था कि हमें जो है ये आइसोलेशन से निकलने के लिए जो है वो मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। लेकिन इन सारे तजर्बात के बावजूद भी जिस तरीके से मैं आफ्ताब अपना इनके मुफ्ती साहब की बात को सुन रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पर हमारी अक्सरियती आबादी है और बदकिस्मती से हम जो अपने आप को वो माइनॉरिटीज का लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए हम आज भी मजबूर हैं पाकिस्तान में, हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक भी जो है उस इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बन सके जिसका हम चाहते हैं। हम जैसे जो एक्टिविस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी अपनी सलाहियतों के साथ, अपनी काबिलियत के साथ इस मुल्क की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करें और जिस तरीके से जो अक्सरियत की आबादी रखने वाला एक तबका है वो वोट के जरिए जो है वो ऐवानों में आता है, हम भी आ सकें। आज तक वो आइडियल सिचुएशन नहीं आ सकी, लेकिन जो भी निज़ाम रहा है, हमें जो बुनियादी चीज़ जिस चीज़ की मैं समझता हूँ कि कमी रही है एक बीइंग एक्टिविस्ट और जिसका ताल्लुक एक रिलीजियस मिनॉरिटी से है, मैं समझता हूँ कि रिलीजियस मिनॉरिटीज की अपनी पार्टिसिपेशन भी जो सियासी अमल में है वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है। हम उस अंदाज से आज तक सियासी अमल में शरीक ही नहीं हुए जिस तरीके से होना चाहिए था। मैं अगर ये यहाँ पर ये कहूँ कि जब जुदागाना इंतखाबात के बाद हमने ये महसूस किया कि हम इसके लफ्जी मायनों के साथ साथ इस पूरे निज़ाम से जुदा हो गए हैं और फिर हम जो है मखलूत इंतखाबात की तरफ आए, तो हमें खुल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट बनना चाहिए था और मेन पॉलिटिकल पार्टीज में आकर अपनी सलाहियतों को मनवा कर उसका हिस्सा बनना चाहिए था। जब हम मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनेंगे तो जाहिर है एक जो बेसिक यूनिट है यूनियन काउंसिल का, वो जब आप उस सियासी जमात का हिस्सा बनेंगे तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहीं से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली आप आगे जाते हैं। लेकिन हम उस इंतखाबी अमल में भी जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा नहीं बने। तो जहां पर हम निजाम की अगर बात करते हैं कि निजाम में अगर बहुत सारी खराबियां हैं तो शायद हमारे अमल में भी थोड़ी बहुत खराबियां हैं। हम पहले उस अमल को देखें कि हमने जो भी निजाम रहा है उसको अपनी बेहतरी के लिए या अपने सियासी हकूक के हसूल के लिए किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। तो जब हम एनालिसिस इस तरीके से करेंगे तो शायद हम जो है वो कोई वे फॉरवर्ड भी जो है वो निकाल सकेंगे। हम एक पहलू का जो है वो एनालिसिस हमेशा करते हैं, जो मजहबी इकाइयां हैं इस मुल्क में उनका सियासी जद्दोजहद में अमल जो है, मैं समझता हूँ मेरी नाकस सी राय यह है कि वो असल में बुनियादी अहमियत का हामिल है कि हमारा अमल क्या है, हम किस तरीके से उस अमल में शरीक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पहलू पर भी जो है वो गौर करने की जरूरत है। जब हमारा अमल एक एक्टिवली हमारी पार्टिसिपेशन होगी तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो जब इन्फ्लुएंस में तब्दील होगी तो हम बहुत सारी चीजों को तब्दील करने में जो है वो कामयाब भी हो सकते हैं। थैंक यू नबी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। हमारे साथ बहुत ही हमारे मोहतरम जो हैं जनाब प्रकाश साहब,
किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन ये आपको पता है कि हमारी एक रवायत होती है कि जब हम अपना प्रोग्राम करते हैं, और क्योंकि वो जो ऑडियंस जो होती है, जो इस टाइम हमें प्रोग्राम में देख रहे हैं हमारे नाजरीन, वो यकीनन ये जानना चाहते हैं कि आज के जो पार्टिसिपेंट है वो क्या है। तो बाय प्रोफेशन जो है प्रकाश साहब, ही इज द एडवोकेट, मिनॉरिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, ही इज अ मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटीज अलायंस मेंबर है, साउथ एशियन काउंसिल ऑफ मिनॉरिटीज मेंबर है, पीपल्स कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटी राइट्स, ही इज ऑल्सो अ मेंबर नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर मिनॉरिटीज, a member committee on minority rights for Sindh human rights or commission government of Sindh. प्रकाश साहब, we welcome you to the show. खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन साहब, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब कि आपने हमें याद किया। थैंक यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि एंथनी नवीद साहब का और आप दोनों का जो ताल्लुक जो है एक ऐसी पार्टी से है जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा काम किया है। और जो एंथनी नवीद साहब ने जिस चीज का जिक्र किया था कि जुदागाना इंतखाबात की तो डिमांड की गई थी, लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टीज में नहीं आ सके, जिस तरह के हमारे जो लोग थे जो इलेक्शन में खड़े हुए, उसके बाद वो आ नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने जो मिनॉरिटीज के जो मेंबर है, मैं देखता हूँ कि सिंध से बहुत सारे जो हिंदू जो है उन्होंने मेन स्ट्रीम पार्टी में, बल्कि उनको मेन जगहों पे मिनॉरिटीज पे नहीं बल्कि जनरल सीट्स पे भी उनको मौका दिया। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लॉयल्टी जो है पार्टी के साथ शो करते हैं तो यकीनन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और दूसरा, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को बने 73 साल हो गए हैं, और जब से पाकिस्तान का आइन बना और ये सब कुछ हुआ, हम देख रहे हैं कि वो जो हमारी जो सीटें जो है वो अभी तक उसमें जो कौमी असेंबली की जो सीटें हैं वो हमें 10 से बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। क्या वजह है उसकी? सर बहुत बहुत शुक्रिया जान साहब। आपने जैसे बात की कि पाकिस्तान में कोई तकरीबन 225 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, उनमें से चंद पार्टीज जो मेन स्ट्रीम में हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, पीटीआई है और रिलीजियस पार्टीज एक दो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जिसमें माइनॉरिटीज भी उनके वोटर्स हैं और उनके मेंबर्स हैं। आपने जो बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं समझता हूँ कि वाहिद पार्टी है जिन्होंने टिकट्स दी थी जनरल सीट्स पे, और सिंध में माशाल्लाह हमारे सिंध में थरपाकर से मलानी साहब आए हैं, मीरपुखा से हरिराम साहब आए हैं और ज्ञानचंद साहब आए हैं हमारे थानेपुरा खान से। तो मैं समझता हूँ ये बड़े खुशाइन बात हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये महसूस किया कि ये जो बात है कि हमारी जनरल सीट्स पे आ सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध की, इसमें मैं समझता हूँ कि 50% हमारे वोटर्स मिनॉरिटीज के हैं, जो लाख से भी ज्यादा वोटर्स हैं हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे, और काफी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर 25,000 से ज्यादा वोट्स और 50,000 से वोट भी ज्यादा आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम जनरल सीट्स पे भी इनको मौके दें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जनरल सीट्स पे जॉइंट सिस्टम आ चुका है पाकिस्तान में, और बड़ी मेहनत के बाद हमने जॉइंट सिस्टम ये लिया था। अब प्रॉब्लम ये होता है जब इशू कोई बनता है तो हमारे जो मेजॉरिटी के जिनको हमने वोट दिया था, जो चाहे पीपल्स पार्टी के भी हों, उनके पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके मिनॉरिटी के रिजर्व सीट्स पे लोग आ चुके हैं, आप फंड्स के लिए भी उधर जाएं, आप जॉब्स के लिए भी उधर जाएं, आपको अगर गली बनानी है तो आप उनके पास जाएं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रुझान है पॉलिटिकल पार्टीज का कि हमें जो जिनको हमने वोट दिया लोकल हमारे एमएनएस एमपीज को, उनको इंटरेस्ट नहीं होता हमारे में, और हमारे सिर्फ रिजर्व सीट्स बेचारे आते हैं, वो बेचारे कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपने देखा कि 2-4 हमारे बिल्स पास हुए थे सिंध असेंबली से जो मेजॉरिटी यूनानिमस पास हुए, लेकिन 1-2 रिलीजियस पार्टीज की तरफ से, जैसे माइनॉरिटी राइट्स कमीशन का बिल हुआ, जैसे हमारी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज का कन्वर्जन का बिल आया, तो पास होने के बावजूद मेजॉरिटी ने 1-2 रिलीजियस पार्टीज की तरफ से या लीडर्स की तरफ से उसको रिजेक्ट किया गया और वो सारा बिल वापस हो गया, गवर्नर ने वापस कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें जब भी हम पास करते हैं कोई बिल या यूनानिमस पास होता है या मेजॉरिटी के साथ पास होता है, तो उनको चाहे मेजॉरिटी हो चाहे मिनॉरिटी का बिल हो,
उसे हमें कवियत को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और ये लाजमन होना चाहिए कि गवर्नर उसे वापस न करे। लेकिन आपने देखा कि हमारी छोटी छोटी जो हमारी पार्टीज हैं वो भी प्रेशर कर लेती हैं, जो हालांकि हमारी पीपल्स पार्टी का मेजॉरिटी वोट है हमारी सिंध असेंबली में, वो मेजॉरिटी रखते हैं, फिर भी हम पास नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन ये है कि जॉइंट सिस्टम में हम फिर भी फील करते हैं कि सिंध में एटलीस्ट पीपल्स पार्टी ने इसको पॉजिटिवली लिया है और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है इसको हम चलाएं, क्योंकि खुश तो कोई भी मतलब आप कभी भी 100% हर चीज को पसंद नहीं कर सकते, कई खामियां जरूर होती हैं, कोई परफेक्ट हमें सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन हम चाहेंगे। लेकिन 47 के बाद हमने कुछ तजुर्बात ही किए हैं, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमने एक लेबोरेटरी बना दी है और माइनॉरिटीज को हर आदमियों ने यूज किया है। कोई भी पार्टी आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे आर्मी रूल हो चाहे दूसरी पार्टी, उन्होंने यूज किया है, मैं कहता हूँ मिस यूज किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे माइनॉरिटीज को यूनिटी पैदा करनी चाहिए, हमें ऐसे लीडरशिप पैदा करनी चाहिए ताकि वो, और दूसरी जगह फुकदान जो मैं बात करूंगा वो ये है कि हमारी पार्टीज में ग्रास रूट लेवल के जो लोग होते हैं, जो 40-40 साल से बैठे हुए, 30 साल से बैठे हैं, हमें पता चलता है कि एक दिन पार्टी वो चेंज करते रहते हैं, कभी वो मुस्लिम में चले जाते हैं, कभी पीटीआई में चले जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक गेम चल रहा है जिसके लिए पॉजिटिवली हमें जो माइनॉरिटीज पे हैं उनको बड़ा नेगेटिव इसका रुझान हुआ है। मैं समझता हूँ कि पार्टीज को एक जो भी उनका मैनिफेस्टो है जितना भी है और जिस लेवल का है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और पार्टीज को भी मैनिफेस्टो में जो बातें माइनॉरिटीज के लिए की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ वोट की हद तक, हम जब वोट दे देते हैं, इलेक्शन हो जाती है तो मैनिफेस्टो रहता है, उसके बाद पार्टीज मैनिफेस्टो को भूल जाती है, तो ये भी एक फुकदान है पार्टीज का। थैंक यू प्रकाश साहब। मैं चाहूंगा कि मोहतरमा आयगा कैनी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्योंकि आपकी जो 24 साल की जो जद्दोजहद रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और ह्यूमन राइट्स की जरूरत हमें वहां पे महसूस होती है कि जहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमारे जो राइट्स जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसकी अब सोल्यूशन क्या है, 73 साल से हमने देख लिया कि जो कुछ भी मिनॉरिटीज के साथ हो रहा है, तो आप कैसे देखती हैं अपनी इस सारी जितनी भी आपकी जद्दोजहद रही है 24 साल में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो क्या इसकी सोल्यूशन क्या देखती हैं आप? सोल्यूशन जैसे सबने कहा कि हमारी लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप का जहाँ पर फुकदान है उसके साथ साथ हमारे अंदर मोटिवेट है कि हमारी जो आम लोग हैं उनके ख्याल में सिर्फ जो इलेक्टोरल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सिर्फ जनरल इलेक्शंस में आना और पार्लियामेंट तक पहुंचना, हमारे पास विजनरी लीडर्स नहीं है। लीडर्स तो हर घर में मौजूद है लेकिन उनके पास विजन नहीं है, जस्ट हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। जब तक हमारे अंदर कौम परस्ती नहीं होगी, नेशनलिज्म नहीं होगा, हमारे इश्यूज हल नहीं होंगे। हर इशू जो है वो पॉलिटिकल है। सो हमारे चर्चेस को अपना रोल रीडिफाइन करना, हमारे रिलीजियस लीडर बोथ माइनॉरिटी मेजॉरिटी political leaders and religious leaders need to redefine their, अपने जो लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उनको मोटिव ग्रूम करें कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में आए और अपने जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उसको निभाएं। एक तो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जिनकी वजह से हमारे पास अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आती है। पीपल डोंट हैव द एजुकेशन। बाहर के मुल्कों में वहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये भी एक वजह है कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स, हम समझते हैं कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं दे आर इंटर रिलेटेड विद पॉलिटिकल इश्यूज। अनलेस वी हैव प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, proper political activism, proper political will to solve these problems, ये हमारे issues जो हैं वो solve नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने कहीं जाना है, कोई और भी जाके उन्होंने प्रोग्राम अटेंड करना है, तो मैं नदीम साहब के पास जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब आप मुझे बताइए, क्योंकि आपकी बड़ी जद्दोजहद रही है, अब मुझे बताइए कि 73 साल में जो कुछ था वो हमने देख लिया, जो कुछ भी मिनॉरिटीज के साथ आपने उसको बड़ा अच्छा अपने पहले जब मेरी बात हो रही थी आपने उसमें बताया कि कैसे जो है मेजॉरिटी भी जो है वो मिनॉरिटीज में तब्दील होती जा रही है। तो पाकिस्तान के आइन में किसी जगह पे आप देखते हैं कि अब हमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है,
कि जिस निज़ाम में हम ये देखते हैं कि आपका जो आइन जो है आपको बराबर के हकूक नहीं दे रहा, ना पाकिस्तान में आप अकलियत से किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, ना कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, और ना ही कोई किसी फोर्सेस का जो है चीफ बन सकता है। तो क्या क्या कहेंगे सारी इसमें? अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने कर लिया। अच्छा देखें, इसमें कुछ तो बुनियादी फंडामेंटल इश्यूज हैं जिनका इजहार मेरे दोस्तों ने भी किया है। जो एंथनी कह रहे थे कि एक तो देखें कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल सुप्रीमेसी या डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट्स है पाकिस्तान में वो वीक रही हैं, जिसकी वजह से मौका नहीं मिला कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स के लिए उस तरह से स्ट्रगल करते या चेंज ला सकते। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश बन रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि सिविल सोसाइटी, मीडिया, कुछ इंटरनेशनल एक सपोर्ट मौजूद है इस वक्त फॉर द रिलीजियस फ्रीडम। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और जैसे अभी बाकी दोस्त भी कह रहे थे कि इंटरनल पुश मौजूद है। अगर उसको सही कैपिटलाइज कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि काफी कुछ किया जा सकता है। लेकिन आइन के जो जैसे मैंने कहा ना 3-4 तो बुनियादी फ्लॉज हैं। जैसे चार्टर 1 और 2 जो है फंडामेंटल राइट्स का, पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का, उसमें भी उन्होंने उसको सब्जेक्टिव किया, सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। यानी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे उस वक्त जिस वक्त लॉ अलाउ करेगा या पब्लिक ऑर्डर अलाउ करेगा या मोरालिटी अलाउ करेगी। अब ये 3 बड़ी कदगनी हैं जिसके साथ ना आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं ना फ्रीडम्स मिलती हैं। इसी तरह आर्टिकल 227 का जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो तो कहता है कि ऑल एग्जिस्टिंग लॉ शैल बी ब्रॉट इनटू कंफॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम and lay down the holy Quran and Sunnah। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर सारे कहानी ने कुरान और सुन्ना के तहत ही बनना है तो फिर यहाँ पर बाकियों के लिए क्या स्पेस रहेगी। बहुत सारे मसाइल हैं, मेरे ख्याल है कि किया जा सकता है। मैं इसके बारे में काफ़ी होपफुल हूँ। मेरा ख्याल है कि नवीद ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बने, मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है। ये मैं वैसे सच्ची बात है एक सेपरेट मूवमेंट या राइट्स की स्ट्रगल के हक में नहीं हूँ। अगर मिनॉरिटीज को हक लेने हैं तो उसको जो एक लार्जर एक मूवमेंट है राइट्स की, फ्रीडम्स की, डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। तभी जाकर जो स्पेसेस क्रिएट होंगी उसका फायदा बाकियों को भी होगा और माइनॉरिटीज को भी होगा। और बाय द वे मुसलमानों के अपने अंदर बहुत सारे सेक्ट्स ऐसे हैं जो इनकी वजह से उसका शिकार हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं और होंगे। सेक्टेरियन मसाइल भी बढ़ने वाले हैं। सो मेरा ख्याल है कि 2 ही हल हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी की स्ट्रगल का हिस्सा बना जाए, दूसरा अपनी तमाम जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। प्रकाश साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं खुद इस पर हमने रिसर्च किया है। 44 हल्के ऐसे हैं नेशनल असेंबली के जिसके अंदर माइनॉरिटी का वोट डिसाइसिव होता है। तो क्यों नहीं हम निगोशिएट करते, क्यों नहीं हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ निगोशिएट करते कि हमारे लिए स्पेस बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस बनाएं, लीगल स्पेस बनाएं, और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं या जो करिकुलम के मसाइल हैं उनको ठीक करवाएं। मेरे ख्याल है कि हमें एक ज्वाइंट निगोशिएशन की जरूरत है। मुझे याद है आफ्ताब तो उसका हिस्सा थे, एक बनी थी जब ज्वाइंट इलेक्टोरल की हमारी एक मूवमेंट थी, आफ्ताब को पता होगा, एक हमने बनाई थी और स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रही है। हम फिर बना सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाकर बात की जा सकती है। HRCP ने एक कोई 26 आर्टिकल आइन के ऐसे निकाले हैं जिनको रिपील करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि उसी पर ही बात की जाए तो ज्यादा मुनासिब। थैंक यू खान साहब, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। नदीम साहब प्लीज अपने माइक को जरा अनम्यूट कीजिएगा और मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी कि हमें एक लीडरशिप की बड़ी अशद जरूरत है। और आपको पता है कि ज्यादातर जब हम मिनॉरिटीज के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारे जुदागाना इंतखाबात नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर जिन लोगों को ये याद होगा कि जब जुदागाना इंतखाबात हुए थे पहली दफा जब 1979 में हुए थे, तो हमने कुछ ऐसे लोगों को भी उस वक्त जो है इलेक्ट होते देखा था कि जिनको सियासी तौर पे कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जो आपके इलेक्टेबल्स हैं, जो लोगों जिन्हें आप ये कहें कि हुकूमतों ने चुन लिया है, हैंड पिक किया है और उन्हें सिलेक्ट किया है, लेकिन मैं तो जितने भी MNAs और MPs से मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने देखा है कि उनके अंदर कम से कम वो सियासी शऊर है। तो आप क्या समझते हैं कि उन्हें, अच्छा जब लोग पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से जब UK की डेमोक्रेसी को देखते हैं
तो उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है जो मेन है, बाकी हमारे पास 4-5 और भी दूसरी पार्टीज हैं, लेकिन जो 2 पार्टी सिस्टम हमारे पास है, यहाँ पे लोग चाहते हैं कि अपने आप को उसके अंदर रखें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये लीडरशिप का फुकदान है या हमें खुद जो है मेन स्ट्रीम पार्टीज के अंदर भी अपने आप को रखने की जरूरत है? मैं समझता अब तो हालात काफ़ी चेंज हो गए हैं। सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत कम अरसे में एक वो पढ़ी सुनी सीखी जा सकती हैं। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। और मैं इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में जाने के लिए मैं सोचता हूं कि जो पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं उनको स्टडीज़ की जाए और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा किया जाए। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ के बारे में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इसकी मैं चंद बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरे नॉलेज में है। जैसे आसिया बीबी का केस उठाया सुलेमान तसीर साहब ने, शहबाज भट्टी साहब ने, और उसको आगे लेके गए। बेशक वो इन 2019 में उनको रिहाई मिली। सेनेट की सीटों में उन्होंने शुरू किया इस पे काम, और 5% कोटे पे उन्होंने शुरू किया काम पीपल्स पार्टी में। तो मैं जब इमरान खान साहब थे, जब उन्होंने अपनी जदोजहद शुरू की तो अक्सर उनसे तलब कलामी होती थी। जब वो पब्लिक मीटिंग में इस्लामाबाद में आते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटीज में जाते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि आपकी पार्टी में मसीहों के लिए, क्रिश्चियन के लिए क्या मंशूर है आपका, आप उनके तहफ़्फ़ुज़ की क्या बात करते हैं, लेकिन वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते थे। तो मैं अपनी छोटी सी राय में यही देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठाया जाए और देखा जाए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमारे मसीहों की तर्जमानी करती है, हकूक़ की तर्जमानी करती है, और जो ऐसे जो 40 जैसे इरफान साहब ने कहा था कि ऐसे 44 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे हम अपने जो मसीही वोट, अक़लियती वोट हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं, तो उनको फोकस किया जाए। अगर हम इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें, और मेरा ख्याल में कि हम इसको अच्छे तरीके से जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें भी हम अच्छी खासी जो अपनी चीज़ें जो अचीव कर सकते हैं, अपनी काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बात तो होती है कि हमारे मेंबर्स जो पार्लियामेंट हैं वो कम होते हैं और उनकी सुनी नहीं जाती पार्लियामेंट में। अभी जो बिल पेश होते हैं उसमें कुछ नवीद जीवा साहब ने बिल पेश किए, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है अभी शुरू हुई, और इसको हम और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि हमने जाना किस तरफ है। हमें एक डायरेक्शन चाहिए सबको कि हम किस तरफ जाएं, और जब जाएं तो सब मिलके इकट्ठे होकर सब पार्टियों को जो मिनोरिटीज है उनको साथ मिलके लेके फिर चलेंगे, तो फिर हम अपनी कोई मजबूत पार्टी, अपना विजन क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू नदीम साहब। नवीद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। नवीद वॉल्टर साहब, ये मुझे बताएं कि बात होती आगे भी, जब हमारी फर्स्ट सेशन में जब बात हो रही थी तो उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि लीडरशिप का फुकदान है, और आयगा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लीडरशिप जो है वो खाली पॉलिटिकली नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम उस पॉलिटिकल सिस्टम को ही सिर्फ मुआदे इल्जाम ना ट्राएं, बल्कि उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि चर्च की भी जो एक लीडरशिप है उसका भी एक बहुत बड़ा कसूर है। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं? कि मैं तो, जैसे मैंने कहा कि नवीद एंथनी साहब की मैं एक जदोजहद को देखता हूँ तो 30-35 साल की एक जदोजहद है, और बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश अगर जुदागाना इंतखाबात हो जाए तो पता चले कि एक काबिल आदमी के साथ एक ऐसा बंदा भी, उसके साथ 10 बंदे ऐसे इलेक्शन लड़ने वाले हों जो कि पता लगे कि सुबह बैठ के ना उनके पास कोई तालीम हो, ना उनके पास कोई सियासी कोई उनकी कोई जद्दोजहद हो, ना ही उनके पास कोई सियासी उनके पास शऊर हो, और वो इनके अगेंस्ट खड़े हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तो पता लगेगा कि अगर 11 बंदे इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो पता लगेगा जिसको लोग चाहेंगे वो तो जीत जाएगा, लेकिन हम किसी ऐसे सियासी वर्कर से जो है उससे महरूम हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि हमें अब जो मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो है हमें अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप को भी आगे करने की जरूरत है, चाहे वो चर्चिस की हो या चाहे कैसे भी हो? असल में जान बास्को साहब, बात यह है कि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो,
पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है इसमें तब्दीली की जरूरत है। आप पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर देख लें, वहां भी जमहूरियत नहीं है, और वहां भी जो आम बंदा है वो मेन स्ट्रीम पे हुए उसे बहुत सफर करना पड़ता है, और विरासती जो क़यादत है वो पॉलिटिकल पार्टियों का खासा है। ये रोजमर्रा की बातें हैं। इसी तरह जो मिनॉरिटीज हैं, हमारे अपने जो समाजी, मजहबी और तमाम दूसरे हलके हैं, इनमें जो सियासी प्रमोशन का कल्चर है वो नहीं है, बल्कि आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि हमारा सियासी कल्चर है ही नहीं, प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि इसको जो है डिस्करेज किया जाता है अपने समाजी और सियासी हलकों में और मजहबी हलकों में। उसकी वजह यह है कि जब तक हमारे तमाम हल्के अहबाब में तमाम जो शुबाजात हैं और हमारे जो सियासी जो स्टडीज है उसको प्रमोट ना किए जाए, हमारे बच्चे अखबार ना पढ़ें, हमारे बच्चे जो है वो टीवी पे टॉक शोज ना देखें, हमारे बच्चे हिलाते हाजरा पे नजर ना रखें, तो वो किस तरह क़यादत की हम जो है वो तवक्को कर सकते हैं। हमें पहले तो सियासी कल्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत है कि हमारे घर के नमक मिर्च से लेके हमारी सांसों तक, हमारे फ्यूचर तक, हमारी प्रोटेक्शन तक और हमारे तमाम जो शोबाजात हैं मिनॉरिटीज के, उन सब जो है वो सियासत के जरिए असर है। तो इस कल्चर की प्रमोशन की जरूरत है और मेन स्ट्रीम पे आना चाहिए। मैं समझता हूँ सारी पार्टियों में आना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इलेक्शंस के दिन में हमने एक मिनॉरिटी डेलीगेशन बनाया, हम तमाम सियासी पार्टियों के पास गए और ऐसी सियासी पार्टियों के पास गए जो मजहबी कहती है, और उनके साथ हमने बात की। यानी रिकॉर्ड पे है कि उनका मैनिफेस्टो जो है वो उन्होंने चेंज किया। उन तक पहुंचने की भी जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है, और जब तक हम मेन स्ट्रीमिंग पे उनके पास जाके डायलॉग करके तमाम अपने जो है स्टेक होल्डर, तमाम जो हमारे जो मिनॉरिटीज के हल्का जात है उनको साथ मिला के काम नहीं करेंगे तो हम मेन स्ट्रीम पे नहीं आ सकते। तो दूसरी बात जो सब दोस्तों ने की उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ अदादो शुमार के हवाले से, कि अदादो शुमार जो है वो हमारे अभी तक पता ही नहीं कितने हैं, हमें कुछ 60-65 लाख से आगे ये बढ़ने ही नहीं देते। और एक स्टडी के मुताबिक, इसका दोस्तों ने भी जिक्र किया है, 2012 में 98 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ऐसी हैं जहां मिनॉरिटीज के 10,000 से ज्यादा वोट हैं, और 2002 में ऐसी 82 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहां पे 10,000 के फर्क से इलेक्शन जीते हैं। तो इन चीजों को सामने लाने की जरूरत है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शन में हम हिस्सा लेते हैं, जब हम पॉलिटिकल वर्कर उसमें शामिल होते हैं, क्या होता है उसमें तमाम मिनॉरिटीज जो है वो भटी होती हैं, तमाम मिनॉरिटीज जो है वो अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उसको प्रमोट करते हैं। तो इकट्ठा कैसे होंगी, ये असल में मसला है। इनको ज्वाइंट करके जी, तो इस तरह की बड़े इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इस तरह। थैंक यू वेरी मच प्रकाश साहब। मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो यूरोप की या जो वेस्टर्न की जो डेमोक्रेसी है वो ये है कि अगर आपका कोई इलेक्टेड मेंबर होता है तो आपके वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके पास जाते हैं, खास तौर पे जो कि पॉलिटिकल हो। तो पाकिस्तान में क्योंकि मेरे साथ आप भी हैं और एंथनी नवीद साहब भी हैं, मैं एंथनी नवीद साहब की तरफ मैं आखिर में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि आए दिन हिंदू बच्चियां जो हैं उन्हें क्या किया जाता है, अगवा किया जाता है और फोर्सबली जो है उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनकी जो है वो शादियां की जाती हैं। आप क्योंकि एक ऐसी पार्टी से आपका ताल्लुक है और सिंध के अंदर जो है हिंदू जो है वो इतने रिच हैं, इतने अमीर हैं, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी है। तो मुझे आप बताइए कि आप किस तरह अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाते हैं और कौन सी लेजिस्लेशन आप लेके आना चाहते हैं कि जिसकी वजह से इन बच्चियों को, उन लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। थैंक यू जान साहब। बात ये है कि ये प्रॉब्लम तो सिंध में हिंदू बच्चियों के साथ है और पंजाब में क्रिश्चियन बच्चियों के साथ है।
ये हमारा जाइंट प्रॉब्लम है। ये कोई सिर्फ कन्फाइंड टू हिंदू कम्युनिटी नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि जब भी कोई सा मसला होता है, जैसे कराची में कल परसों हुआ है, आरजू लड़की का, एक क्रिश्चियन लड़की का हुआ है, 13 साल की लड़की है, उसको शादी कराई गई है। अब बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध असेंबली ने पहले ही मैरिजेबल जो एज हमारी रखी है वो 18 साल रखी है। हमारा कहना ये है कि 18 साल से जो बच्ची कम है वो शादी नहीं कर सकती। नंबर 1, जो शादी कर ही नहीं सकती तो उस पे वो जो कन्वर्जन का मसला जब आता है तो उस पे खामोशी हो जाती है। एक कोर्ट का एक फैसला आता है, दूसरी कोर्ट का दूसरा फैसला आता है। तो हमारी कोशिश यही है कि 18 साल की जो एज रखी गई है, मैरिजेबल एज है, चाहे वो हिंदू लड़की हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम लड़की हो, वो शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर बिल्कुल कोई शादी करना चाहती है तो 18 साल के बाद वो जरूर करे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पासपोर्ट भी 18 साल के बाद मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, वोटर भी 18 साल के बाद ही होता है। एज हमारी 18 साल है, मैरिजेबल एज भी हमारी 18 साल, रेस्टेंट आ गया अभी, मैरिज जो एज रखी गई है 18 ईयर। तो हमारा कहना इनको यही होता है कि मेहरबानी करके आप 18 साल से जो कम है उनको तो हमें वापस कर दें, और अगर कोई विलफुल है तो भले वो करें, हमें कोई एतराज नहीं, मेजर हो जाती है तो भले करें। अब इस सिलसिले में एक प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स का एक बिल पास हुआ था सिंध असेंबली ने, जो कि एक्चुअली माना में कन्वर्जन का बिल था, पोस्ट कन्वर्जन को स्टॉप करने के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की कि वो एक हमारे 2-3 रिलीजियस पार्टीज थी, उन्होंने शोर मचाया, वो यूनानिमस पास हुआ और बिल वापस हो गया, एक्ट नहीं बन सका वो। अब वो पेंडिंग है और हमारी कोशिश है, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बिल्स रहे हुए हैं अपने असेंबलीज में, स्पेशली सिंध असेंबली में, वो हम पास कर रहे हैं। और फेडरल लेवल पे भी ये इशू चल रहा है। अब देखें वहाँ पर, क्योंकि नेशनल कमीशन पाकिस्तान में बन चुकी है एक नोटिफिकेशन के जरिए, तो वो भी एक ड्राफ्ट बिल पेश करने वाले हैं। तो हम अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को, अगर वो पोस्ट कन्वर्जन पे कोई लाती है, कम से कम और कुछ न करें। अगर मजहबी कोई मसला इनका होता है तो कोई मसला नहीं, हम ये कहते हैं कि 18 ईयर्स से कम शादी नहीं होनी चाहिए। पंजाब में क्योंकि 16 साल है, हमारे यहाँ 18 है, तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करके लड़कियों को ले जाते हैं पंजाब में, वहाँ से हिंदू लड़कियों की शादी हो जाती है। तो अभी 2-3 केसेस दूसरे भी हुए हैं। तो हमारी बिल्कुल कोशिश है कि ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट हो। अगर लॉ इम्प्लीमेंट होगा और पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली, जो मेजॉरिटी में हमारे MNAs MPs हैं, वो हमें सपोर्ट करें, तो ये मसला बिल्कुल कम हो सकता है। थैंक यू प्रकाश साहब, थैंक यू। नवीद, एंथनी नवीद साहब, क्योंकि आप जो है उस कमेटी को जो है चेयर भी कर रहे हैं, और मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे और कि ये जो कमेटी फॉर्म हुई है खास तौर पे आरजू के सिलसिले में, आप उसे चेयर कर रहे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा, क्योंकि आज प्रोग्राम के तवज्जुह से, एक तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उसका अपडेट दें कि उसकी सूरत हाल क्या है, और दूसरा ये कि भाई नवीद ने जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो अकलियत की जो तादाद को जो बताया गया था 60 to 65 लाख, तो मैं चाहूंगा कि बताइए कि खास तौर पे सिंध के हवाले से क्या सेंसस जो है मसीहों का वो कितना है, क्या उसमें अभी तक भी कोई प्रॉपर तरीके से उसका सेंसस हो चुका है या अभी तक होने वाला है? तो ये दोनों इश्यूज पे मुझे बात बताइएगा मुझे प्लीज। मैं बड़े एहतराम के साथ वॉल्टर साहब से बस यही बात कहना चाहूंगा, यहाँ तो पूरे पाकिस्तानियों को नहीं अपने सेंसस का पता, तो मैं क्रिश्चियन या हिंदू की क्या बात करूं। यहाँ तो सारे पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमें तादाद बताई जाए। हम तो सिंध का मुकदमा पता नहीं कब से लड़ रहे हैं कि भाई आप जो सिंध के शहरियों की तादाद बताएं। कराची की तादाद आपने जो है ना वो चेंज कर दी, हैदराबाद की चेंज कर दी, पूरे सिंध की तब्दील कर दी, तो पता नहीं वो तो तादाद बताने को तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तानियों की एक्चुअल वो पॉपुलेशन है क्या। तो उसमें तो जाहिर है फिर आप ये तो इतना बड़ा मुजरिमाना फेल है जो मिनॉरिटीज के साथ कि अगर आप 2012 का सेंसस उठा के देख लें या उसके बाद 18 के देख लीजिए, तो फिगर को ऊपर नीचे किया गया है, लेकिन इतने बदनीयती के साथ उस परसेंटेज को उन्होंने वो फिक्स रखा हुआ है। तादाद को चेंज कर रहे हैं लेकिन परसेंटेज को फिक्स रख रहे हैं। ये अगर इसको आप माइक्रो लेवल पे स्टडी करें ना सेंसस को, तो हमें ये जो इनका एक मुजरिमाना अमल है ना वो नजर आ जाता है कि तादाद को अकॉर्डिंगली चेंज करके जो उसका रेशियो है या जो परसेंटेज है उसको वहीं पे फिक्स किया गया है। ये तो हो गया हमारा सेंसस का एक कॉमन इशू। दूसरी बात जो आप ये आरजू के हवाले से बात कर रहे थे, देखिए रियासत में
या सूबों ने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने इस फेल को रोकने के लिए जो बेहतरीन कवानीन हो सकते हैं वो बनाए हैं, असम्बलीज ने बनाए हैं। और खास तौर पर सिंध असम्बली की अपनी तारीख है कानून साजी के हवाले से कि वो बहुत मिनॉरिटी फ्रेंडली जो है वो लेजिस्लेशन में सबसे जो है वो मुनफरिद किरदार अपना रखती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इशू थोड़ा सा फर्क है कि ये माशरे में वो सोच है, वो थोड़ा सा मैं सख्त लफ्ज अगर इस्तेमाल कर दूं कि वो एक हैवानी एक सोच रखने वाले वो किरदार जो टारगेट करके जो कम उम्र और नासमझ बच्चियां हैं उनको वो फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं और उनको वो है वो अपने जो अपने ईमानी तकाज़ों के मुताबिक वो जो भी उनकी एक अचीवमेंट्स होती हैं वो उनके हसूल के लिए इन छोटी बच्चियों को टारगेट करते हैं और मजहब की तब्दीली की तरफ उनको लेके जाया जाता है, जबकि रियासत की तरफ से इस तरीके से कोई ऐसी कानून साजी में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। देखें, फिर जब ये अमल हो जाता है, ये फेल हो जाता है, तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक अमल होता है कि जो इंतजामिया में जो लोग शामिल होते हैं वो भी उन मजहबी जज्बात के जो है वो जेर असर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उस केस को लड़ने में या उस बच्ची के हसूल में जो है वो बहुत सारी जो है वो पेचीदगियों का वो सबब बनते हैं। हमें आरजू के केस में भी कुछ इसी तरीके से चीजें जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। हमें भी उसी तरीके के चैलेंजेस हैं कि देखिए सूबे में कवानीन मौजूद हैं कि आप कम उम्र जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, नासमझ बच्ची है, उसको जो है वो जबरदस्ती उसका मजहब तब्दील करके उसकी शादी नहीं कर सकते। कानून अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जो हुकूमती इदारे हैं उनमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस सोच के हामिल लोग हैं। हमारी जंग जो है उस सोच के साथ है जो यहाँ पर रिलीजियस मिनॉरिटीज को टारगेट करना चाहती है, और इस जंग के लिए हम आज भी बरसरे पेकार हैं, कल भी थे और हमें शायद और भी काफी टाइम तक मेरा ख्याल है उस सोच के खिलाफ जो है वो अमल में रहना पड़ेगा। और ये एक मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो है वो उस लेवल पर आज तक नहीं आ सकी कि जहां पर आप जो है तमाम इंसानों को मजहब से बालातर होकर जो है वो कोई मकाम देने के लिए तैयार हों। तो इस सोच को मैं समझता हूं कि प्रकाश साहब ने भी अपनी जवानी लगा दी और आज हमारे ये सीनियर साथी हैं और हमारे साथ बहुत सारे ग्रुप्स में मिलकर जदोजहद कर रहे हैं और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं वाल्टर साहब की बात को इंडोर्स करूंगा कि देखें, ये बेहतरीन हल यही है कि हमें माशरे में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डायलॉग करने की जरूरत है, उनके साथ लॉबिंग करने की जरूरत है। अपने जो हमारे कंसर्न हैं, जो हमारे साथ जो परेशानियां हैं उसमें हम ख्याल दोस्त ढूंढ कर जो है उन कुव्वतों को यकजा करने की जरूरत है। और यही कमजोर इकाइयां बेहतरीन अमल यही होता है कि आप लॉबिंग करके, आप एडवोकेसी करके जो है वो अपने हम ख्यालों की तादाद में इजाफा करके अपने जो आपके जो गोल हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उसमें थोड़ी सी आसानियां पैदा कर सकते हैं। तो जो अभी एक मोहतरमा फरमा रही थी बात से लीडरशिप के हवाले से, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं थोड़ा सा अगर आप ये बताएं। देखिए, हमें एक चीज थोड़ी सी इसको रियलाइज करने की जरूरत है कि ये जो आप फरमा रहे थे अभी कि 79 में जो जुदागराना इंतखाबात हुए और बहुत सारे लोग आगे, आज 79 की ही पैदावार आपके पूरे मुल्क पे जो है वो रूल कर रही है और इलेक्टेबल्स हैं और इधर उधर मूव कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के आज वो जो है वो कायद भी बन गए हैं, वो सारे 79 में ही आए थे। और देखिए, असल चीज यही होती है कि जमहूरियत अगर एक तवातर के साथ चलती रहेगी, इलेक्शन प्रोसेस एक तवातर के साथ चलते रहेंगे, तो जो रिलीजियस जो मिनॉरिटीज होती हैं वो भी उस प्रोसेस में जब में बार बार जो उस छननी में आएंगे, धुलेंगे, तो वो भी मतलब रिफाइन होकर सामने आ सकेंगे और इस तरीके से मुल्क की जो अक्सरियती पार्टी हैं उनके अमल को भी समझने में हमें आसानी होगी और फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन 22-22 साल का, 11-11 साल का ये जो गैप मुल्क में रहा है, एक सियासी अमल को जिस तरीके से रोका गया है, उसके भी असरात हम आज तक भुगत रहे हैं।
میں اگر ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کروں ایک مائنورٹیز کی جمہوری جدوجہد کی کہ جس طریقے سے انہوں نے ان سیاسی جماعتوں کو بہترین طریقے سے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا، تو شاید ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بابری مسجد کے واقعے کے بعد جس طریقے سے وہاں کی مسلم اقلیت نے کانگریس سے بدلہ لیا تھا سیاسی طور پر، اس سے اچھی مثال ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں بھی ان سیاسی جماعتوں کا بالکل اس طریقے سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے جو منورٹیز کو اس ملک میں بالکل کارنر کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی توانائیاں لگائیں، جنہوں نے ان کو مختلف قانون سازی کے ذریعے یا مختلف مواقع پر اپنے عمل کے ذریعے اس ملک میں جو ہے وہ نفرت کا اور تعصب کا نشانہ بنایا۔ تو ہمارے پاس جب الیکشن کا عمل آتا ہے، جب طاقت میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو پھر فیصلہ بھی میں اپنے گزشتہ کل کو سامنے رکھ کر اپنے آئندہ آنے والے کل کا فیصلہ کروں، تو شاید بہت سارے جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو ریلیجس مینورٹیز ہیں، اور اسپیشلی میں اگر اپنی کمیونٹی کی بات کروں، کرسچن کمیونٹی کی، اور اس میں بھی فردر اگر میں بات کروں تو پنجابی کرسچنز کی، پاکستان کے اندر ہم نے سیاست کو اپنے گھروں سے جو ہے وہ بالکل دور کر کے رکھا ہے۔ ہم اپنی یوتھ کو اس میں آنے نہیں دیتے، سیاست کو ایک بہت ہی برا فعل سمجھتے ہیں، بہت برا فعل سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی میں دیکھوں، اگر اس کو اگر ہم ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں، تو میں جس کا فالوور ہوں، انہوں نے نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی، نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اور اگر اور تھوڑا سا مجھے آپ موقع دے دیجئے، تو ایک بیوہ کی جس کا بیٹا جوان مر گیا تھا، وہ شاید نینا کی بیوہ تھی جس کا وہ بیٹا جوان مر گیا تھا، اور جب جیزس کرائسٹ وہاں پر گئے اور وہ جب ماں رو رہی تھی، اس کا آسرا ختم ہو گیا تھا، اس کی امید ختم ہو گئی تھی، کیونکہ نوجوان جو بچہ ہوتا ہے، جو نسل ہوتی ہے، وہ والدین کے لیے امید ہوتی ہے۔ جب اس کی امید ختم ہو گئی تھی، اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی، تو خدا نے کہا کہ اٹھ اے جوان، اس ماں کی امید کو کھڑا کیا۔ آج اگر ہم سب جو بھی جس طریقے سے اس فکری گفتگو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس سوچ کو اگر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے نوجوانوں کو کہیں کہ آج کلیسیا جو ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس کی امید ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم کہیں کہ اٹھ اے جوان، اور اپنی ماں کی امید کو دوبارہ اسی طریقے سے اسٹرینتھن کر جس طریقے سے خدا نے اس نوجوان کو زندہ کیا تھا۔ تو یہ جو سوچ ہے جس میں ہم نے سیاست کو ایک بہت ہی گھنونا، ناپاک اور ایک گندا عمل سمجھ لیا ہے، ہم ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے اس نا امید کلیسیا کو دوبارہ جو ہے پر امید کر سکتے ہیں۔ اینتھنی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے اینتھنی نوید صاحب۔ آپ نے تمام لوگوں کی گفتگو سنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا، بہت ساروں نے اس میں اپنا ہمیں سولوشن بھی بتائی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، جو آج بھی جب میں اس شعر کو سنتا ہوں تو مجھے آج بھی اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام ملے، ہم اس جگہ پہ پہنچ سکیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیلف موٹیویشن از اے اسٹارٹ آف ٹیم موٹیویشن۔ آپ گھروں سے بھی موٹیویٹ ہوں، اور میں ایم پی اینتھنی نوید صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہم نے سیاست کو اتنا برا سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اس میں آنے ہی نہیں دیتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیاستیں جو ہیں وہ گھروں سے شروع ہوتی ہے اور پھر محلوں میں جاتی ہے، اور یہ سیاست جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز نے مجھے آج سب سے زیادہ آج کے پروگرام میں جو مجھے سب سے بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل جدوجہد کا اگر آپ حصہ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے مین سسٹم کے اندر گھسنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اس مین سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، تب تک آپ کس طرح سے اپنے حقوق کو منوا سکیں گے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب پرکاش صاحب نے کہا کہ ان کے 3 جو لوگ جو ہیں سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جنرل سیٹ سے جیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں بتاؤں آپ کو کہ پنجاب میں مسیحیوں کی بہت بڑی تعداد ہے
क्या वजह है कि वहां पे आपको जनरल सीट से जो है वो नहीं जिताया जाता, जबकि मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी सीट में तकरीबन 40% से ज्यादा जो वोट जो थे वो पाकिस्तानी मसीहों के थे। मैं किसी जगह पे गलती कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें हमारे बड़े वोट थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके राइट्स जो है आपको मिले, तो आपको भी उस सिस्टम का भी हिस्सा बनना है। और जहां तक बात रही लीडरशिप की, मैं यकीन जाने के आज हमारे साथ एमपी एंथनी नबी साहब है, मैं आसिया नासिर साहबा से मिला हूँ, मैं संधू साहब से मिला हूँ, मैं और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। तो मैं उनको जब देखता हूँ उनकी जद्दोजहद को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम अगर ये जुदागाना से आते तो हमें तो एक फिर प्रोसेस में एक और टाइम लग जाना था। कम से कम जो मेन पार्टीज है उन्होंने जो बंदों को सिलेक्ट किया है, कम से कम उन्होंने ये देखा कि इनकी जद्दोजहद थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा जो है सिस्टम बेहतर हो, तो प्लीज अपने आप को मेन पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को लेके आए, ताकि आप भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरह अपने आप को आगे लेके आ सके। एंड इट्स ओवर टू मुगल भाई। थैंक यू वेरी मच जॉन बॉस्को साहब। मैं आज के प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं दो चीजें जरूर शेयर करना चाहता हूं। एक तो मैं मुजम्मत करता हूं जनाब अली इमरान सहाफी, जिनको कल कराची में अगवा किया गया, उनके अगवा की मुजम्मत करता हूं और इस बात पर तसल्ली का इजहार करता हूं कि वो बाजियाब हो चुके हैं। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, ये जबरी गुमशुदगियों का मामला खत्म होना चाहिए और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने उनको अगवा किया है उनको सामने लाया जाए और उनको सजा दी जाए। दूसरा, जो हमारी एक बच्ची आरजू राजा जो कराची में अगवा हुई और उसे जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया और उसकी शादी की गई, उसके लिए हमारे जो साथी उसके इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और हम जितनी भी फोर्स्ड कन्वर्शन के मामलात हैं उनकी मजम्मत करते हैं और रियासत और हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि वो ये फोर्स्ड कन्वर्शन के इशू को संजीदगी से ले। और ये ना सिर्फ हिंदुओं या मसीहों का मसला नहीं है, ये औरतों की इज्जत का मसला है, पाकिस्तान के तमाम तर औरतों की इज्जत का मसला है, तमाम पाकिस्तानियों का मसला है। और फिर इस किस्म के वाकयात होने के बाद हम पाकिस्तान की कौन सी तस्वीर दुनिया के सामने पेश करते हैं? रियासत और जो तमाम हुकूमतें हैं उनको इन चीजों का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम साथियों का जिन्होंने बहुत ही खैर हासिल गुफ्तगू की आज के मौजू पर, और जो खास नुकात उन्होंने हमारे साथ शेयर किए उसमें पॉलिटिकल कल्चर की बात उन्होंने की, सेंसस की बात की, जॉइंट इलेक्टर्स और सेपरेट इलेक्टर्स की बात की, और फोर्स कन्वर्शन की बात की। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम मौजूआत हैं। मुस्तकबिल में इन पे जरूर इस किस्म की नशिस्त रखेंगे ताकि इस पे और ज्यादा हम बातचीत कर सकें। जहां तक मेरी नजर में पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, तो ये एक बहुत ही गलत फहमी है हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी शहरियों को कि जब भी हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो एकदम हम वोट की बात करते हैं, और वोट भी कौन सा, जो सूबाई असेंबली के वोट है और नेशनल असेंबली के वोट है। जबकि दुनिया भर में जो जमहूरियतें मुकम्मल होती हैं, ताकतवर होती हैं, और आम शहरियों के जो मसाइल हल होते हैं वो मुकामी सतह पे होते हैं। वो जो मुकामी हुकूमतें हैं वो मसाइल हल करती हैं, क्योंकि मैं इंग्लैंड में तो मुझे पता है कि 99% हमारे जो मामलात हैं उनका ताल्लुक मुकामी हुकूमतों के साथ है। हमारे बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बहुत कम, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी जो बात है वो हमें जो नेशनल पॉलिटिक्स है, अकलियतों को खसूसी तौर पे नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की जरूरत है। हम आइसोलेशन में और गेटवाइज्ड होके अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मसाइल हल करें तो हमें जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान में वो कल्चर कायम नहीं हुआ।
जहां पे इंसानों को उनकी सलाहियतों की बुनियाद पर पार्टियों में हिस्सा दिया जाता है, ओहदे दिए जाते हैं, टिकट्स दिए जाते हैं, उनको जो उनके थिंक टैंक्स हैं या उनकी जो कोर कमेटीज है उनमें रखा जाता है। हमारे हमसाए मुल्क में इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां पे जो वहां की अकलियतें हैं, वो अकलियतें कहते नहीं लेकिन जो कम तादाद में है, मजहब की बुनियाद पर वो बहुत हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंची हैं और आज भी वो बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त आने वाले वक्त में हमारी तरफ से भी पेशरफ्त होगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी पेशरफ्त होगी। जहां तक इलेक्टोरल सिस्टम का मामला है तो 1990s में हेरल्ड ने एक सर्वे किया था और उसके मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 79% अकलियतें जॉइंट इलेक्टोरेट्स की हामी थी। 2002 में जब इलेक्शंस हुए तो उस वक्त हमने एक इरफान मुफ्ती साहब जिस फोरम का हवाला दे रहे थे वो थे कोसैप, और कोसैप 6 क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाए थे, लेकिन उसमें हमें बाकी बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे, सिख, हिंदू और बाकी साथी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। और प्रकाश साहब जानते हैं कि इन्होंने सिंध में, हैदराबाद में खुसूसन और बाकी पूरे सिंध में इन्होंने बहुत ट्रैवल किया था लोगों को ये बताने के लिए कि ये सिस्टम हमारी फेवर में नहीं है और हमें इसका बाइकआउट करना, और 90% माइनॉरिटीज ने उसका बाइकआउट किया था। जो आज का हासिल गुफ्तगू है तमाम साथियों ने जिस पे बहुत जोर दिया है वो ये कि ना सिर्फ अकलियतों के दरमियान डायलॉग की जरूरत है, बल्कि हमें जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनके साथ भी डायलॉग करने की जरूरत है और यही शायद हमारे लिए वे फॉरवर्ड होगा। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने साथी जॉन बॉस्को साहब का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। वो जब भी हमें जरूरत होती है तो हम हमेशा हमारे साथ होते हैं और वो इसी तरह अपना वक्त एक तामीरी अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे शुक्रिया अदा करना है ईगा कैनी का, नवीद वॉल्टर का, नदीम भट्टी का, इरफान मुफ्ती साहब का, एंथनी नवीद एमपी साहब का और जनाब एम प्रकाश साहब का, जिन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी सैर हासिल गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू सिर्फ यहाँ तक के लिए नहीं है बल्कि ये बहुत से लोगों की एजुकेशन के लिए है और यकीनन हम इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज जोसेफ फ्रांसिस साहब ने शामिल होना था, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो अपनी तबीयत की नासाजी के बायस हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। उनका इंसानी हकूक़ के लिए, परसिक्यूटेड क्रिश्चियन के लिए बहुत लंबे अरसे की खिदमत है और ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि उन्होंने एक पार्टी को भी वो हेड करते हैं और उन्होंने बहुत एक्टिवली जितने भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल अलायंसेस बने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उनकी हमेशा बहुत ज्यादा शमूलियत रही है। हम उनके इस शुक्रिया के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग। थैंक यू सर।